Hello everyone, welcome to Study Icon, and today I'm going to discuss current affairs news of week 3rd. Okay, basically I will cover 15 to 22 December current affairs news and 23-24 December well. Maybe you are in dilemma whether you should read the week 3rd of December for clerk mains exam which is scheduled on January 1 or not. In my opinion, you should definitely read and learn whatever be happening in this week because this is a really important exam in which you cannot take any half chances. Okay, so whatever you have to do, please listen and please listen carefully. A complete lecture, please listen. Okay, because I am also discussing some important points which also happened in this week in and this December basically. Okay, so let's start. It is a compilation of Hindu newspaper current affairs and weekly web news. Okay. So the first question is which union ministry has launched Gov to mobile app to monitor rural electrification data? बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गर्व टू मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है द आंसर इज अ मिनिस्ट्री ऑफ पावर हैज लॉन्च गर्व टू मोबाइल ऐप टू मॉनिटर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन डेटा ओके the another question which can be framed from here who is the minister of power the answer is a Piyush Goyal okay Piyush Goyal is a minister of power coal and mines okay so this is really important question which you have to point out okay some important points from here which happened in December. Yes Bank has launched Yes Pay application. What is the feature of the Yes Pay? It does not require that both the transaction parties be registered on it. Okay, so what is the feature of the Yes Pay application? It does not require that both the transaction parties be registered on it. Okay, second application another launched by the Yes Bank. It is a Yes Mobile 2.0 version. The feature of this application extensive support for banking transactions on Apple and Android based smartwatches. Okay, so this is a really important question as well because Yes Mobile 2.0 application launched by the Yes Bank. What is the feature of this application? The feature of this application extensive support for banking transactions on Apple and Android based smartwatches. Okay. Third question which also can be framed Empower application launched by the which bank? Canara Bank. Answer is a Canara Bank launch Empower application. Okay, so please write this. Canara Bank has launched Empower application. Okay. Fourth, Hello application is launched by the Orkut. Hello application is launched by the Orkut. Okay. So this is some important points which happened in December. You have to write down. Okay. And you have, I think, if you listen carefully, you will definitely got it. So, okay, second question. What is the current interest rate on employee provident fund? 1 minute. Okay. So, what is the current interest rate on employee provident fund on financial year 17? The answer is a 8.65%. Okay. So, this is another really important question. What is the current interest rate on employee provident fund for financial year 17? Is 8.65%. Initially it was 8.8%, but now it is reduced and it is now 8.65%. Okay. Third question. Third question written Sanji Sans, the national newspaper for senior citizen, has been launched by which union ministry? So answer is it is launched by the Ministry of Social Justice and Empowerment. Okay, who is the Minister of Social Justice and Empowerment? Is a Thawar Chand Gehlot. Okay, what is the name? Who is the Minister of Social Justice and Empowerment? The answer is a Thawar Chand Gehlot. Okay, Thawar Chand Gehlot is the Ministry of Power, Social Justice and Empowerment. So another question which can be framed from here, Sanji Sans, a national newspaper, it is launched for which category? Means it is launched by for the student or for man, woman. It is launched for which category of person? So it is launched for senior citizen. Okay. So सांझी सांझ नेशनल न्यूज़पेपर ये सीनियर सिटीजन के लिए लॉन्च हुआ है इसको किसने लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट कौन है मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस और पावरमेंट कौन है सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के मिनिस्टर तो वो है थावर चंद गहलोत ओके सो ये है थर्ड क्वेश्चन ओके
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई थिंक आप सब लिख रहे होंगे इसको। फोर्थ क्वेश्चन है, विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज वन गोल्ड मेडल इन द वेब रत्न कैटेगरी ऑफ 2016 डिजिटल इंडिया अवार्ड्स? द आंसर इज अ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। Ministry of Health and Family Welfare has won gold medal in the Web Ratna category of 2016. Okay, another question which can be framed from here, which Digital India Awards is conferred by which ministry? So it is conferred by the Ministry of Electronics and IT. Ministry of Ministry of Electronics, Ministry of Electronics and IT domain and IT department. To okay, and the purpose, what is the purpose behind it? To promote more innovative e-government initiative by the government entities. Okay, so this is a purpose for ministry, means Ministry of Health and Family Welfare has won gold medal in the Web Ratna category. Okay, so this is a another important question which you can write down. Okay, next question is Swasthya Raksha program has been launched by which union ministry? मे भी आप समझ रहे होंगे कि क्योंकि यूनियन मिनिस्ट्री मैंने सबसे पहले यूनियन मिनिस्ट्री से रखी है क्योंकि इस पे एक क्वेश्चन आना है, इस पे एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि किस यूनियन मिनिस्ट्री ने क्या लॉन्च हुआ है करा है अभी, ठीक है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन है स्वास्थ्य रक्षा प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री? सो इट इज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हैज लॉन्च स्वास्थ्य रक्षा प्रोग्राम। ओके, अनदर क्वेश्चन व्हिच कैन बी फ्रेम फ्रॉम हियर, और इससे क्या फ्रेम हो सकता है कि किस लिए लॉन्च करी गई है? ओके, सो टू प्रमोट हेल्थ एंड हेल्थ एजुकेशन इन विलेजेस। फॉर व्हाट पर्पस इट हैज बीन लॉन्च? ये किस पर्पस से लॉन्च हुई है? टू प्रमोट हेल्थ और हेल्थ एजुकेशन विलेज में प्रमोट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने स्वास्थ्य रक्षा प्रोग्राम को लॉन्च करा है। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Immunization incentives and information program has been launched by which state government of India? Okay, immunization incentives and information program has been launched by which state government of India? Okay, it is launched by the Haryana government. Answer is a Haryana. Answer is a Haryana. Okay, another important points for Haryana. The first point, Haryana also launch Haryana. There are many news related to Haryana. I think you should write down that things. Okay. So the next question is who has been conferred with the ICFA 2016 Global Agriculture Leadership Award? Narendra Modi, Mukesh Ambani, Venkaiah Naidu, Ratan Tata. The answer is Ratan Tata. Ratan Tata has been conferred with the ICFA's 2016 Global Agriculture Leadership Award. And what is the full form of ICFA? ICFA full form is Indian Council of Food and Agriculture. Okay, Indian Council of Food and Agriculture is a full form of ICFA. So Global Agriculture Leadership Award जो है ये किसको मिला है? रतन टाटा को मिला है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्लोबल एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड किसको मिला है? तो वो मिला है रतन टाटा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The 2016 World Confluence of Humanity, Power and Spirituality has started in which country? It is started in New Delhi, India. It is started in New Delhi, India. World Confluence of Humanity, Power and Spirituality has started in which country? It is started in New Delhi, India. मैंने आपको बताया कभी भी कोई भी कॉन्फ्रेंस हो, कभी कुछ भी हो, तो आपको हमेशा कुछ 3 पॉइंट्स देखने होते हैं ना कि ये कहाँ पे हुआ है, पहला इसको किसने इनॉग्रेट करा है, थर्ड इसकी थीम क्या है। ठीक है, तो ये जो है पहला तो पता चल गया हमें कि ये कहाँ पे लॉन्च हुई है, तो ये कहाँ पे हुई है? ये न्यू दिल्ली इंडिया में हुई है। सेकंड, इसको किसने ऑर्गेनाइज करा था? तो इसको ऑर्गेनाइज करा था एसोचैम ने। ठीक है, इसको किसने ऑर्गेनाइज करा था? इसको ऑर्गेनाइज करा था एसोचैम ने। ओके, एंड थर्ड इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी सच भारत स्पिरिचुअलिटी एट वर्क। सच भारत स्पिरिचुअलिटी एट वर्क। ये इसकी थीम थी।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड कॉन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमैनिटी पावर एंड स्पिरिचुअलिटी की थीम क्या थी, तो उसकी थीम थी सच भारत स्पिरिचुअलिटी एट वॉक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग हैज वन द बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2016? द आंसर इज एंडी मुरे। Okay, Andy Murray is the answer. Who who won the BBC Sports Personality of the Year 2016 award? Okay, next question. Which state will become the first Indian state to have 24/7 helpline for forest? Most important question. Most important question है ये कि किस स्टेट ने, जो कौन सा पहला स्टेट है जिसने फॉरेस्ट के इशू के लिए 24/7 हेल्पलाइन नंबर 1 लॉन्च कर दिया है? तो वो पहला स्टेट बना है, वो है महाराष्ट्र। ओके, महाराष्ट्र विल बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू लॉन्च 24/7 हेल्पलाइन फॉर फॉरेस्ट। फॉर व्हाट पर्पसेस? आई टोल्ड यू ना कि मतलब कोई भी आप कभी भी कोई भी न्यूज पढ़ो तो आपको पता होना चाहिए कि किस लिए लॉन्च हुई है। ओके, so it is launched for registering complaints or getting information about issues related forest and wildlife. Okay, so forest means any complaints regarding issues related to forest and wildlife. So it is launched by the Maharashtra. Maharashtra is the first Indian state to have 24/7 helpline for forest. Okay, next question. Who has been honored with Legends Award by the International Boxing Association? Who has been honored with the Legend Award by the International Boxing Association? Answer is a Mary Kom. ओके, आंसर क्या है? मैरी कॉम। मैरी कॉम को ऑनर्ड करा गया है लेजेंड अवार्ड्स के लिए बाय द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। ओके, एक और इसमें एक क्वेश्चन बनता है, इससे नहीं बनता है, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है कि वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल में 35th रैंक मिली है, अभी किसको मिली है? नीरज गोयत को। तो क्वेश्चन ये बनता है कि नीरज गोयत किस चीज से रिलेटेड है? तो वो है किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो वो है बॉक्सिंग से। ठीक है, तो नाम क्या है? नीरज गोयत। नीरज गोयत जो है ये बॉक्सिंग से रिलेटेड है। इस पे क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि अभी उनकी 35th रैंक जो है वो उनको आई है किसमें? इंडियन बॉक्सिंग काउंसिल। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द इंडियन नेपाल फोल्क क्राफ्ट फेस्टिवल हैज स्टार्टेड इन विच सिटी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द इंडिया नेपाल फोक क्राफ्ट फेस्टिवल हैज स्टार्टेड इन विच सिटी? इट इज स्टार्टेड इन काठमांडू। काठमांडू में ये लॉन्च करा गया है। ठीक है, अब कोई भी चीज लॉन्च होती है, so for what purposes it is launched? To promote cultural exchanges between the two neighbors. Means what two neighbors? India and Nepal. Okay, so cultural exchanges के लिए ये हुआ था। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको एक बार आप देख लो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं जो अभी रिसेंटली हुए दिसंबर में? वो है हरेली फेस्टिवल। हरेली फेस्टिवल। सो हरेली फेस्टिवल जो है ये कहाँ पे सेलिब्रेट करा गया था? हरेली फेस्टिवल जो है ये छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में ये हुआ था। ठीक है, सेकंड क्या है? सेकंड है नेशनल चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल। नेशनल चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था जयपुर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कि नेशनल चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल जो है ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था? तो ये ऑर्गेनाइज हुआ था जयपुर में। ठीक है, तो दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट which you can write down. The Hareli festival is happened in Chhattisgarh, and National Children Film Festival is organized in Jaipur. Okay, so this is a really important question. The Thal Phawang Kut festival has started in which state of India? It is started in Mizoram. Okay, the answer is Mizoram. The Thal Phewang Kut festival has started in which state of India? It has been started in Mizoram. Okay, so the answer is Mizoram. Okay, next question. India's first cashless bazaar has come up in which of the following states? India's first cashless bazaar has come up in Chhattisgarh. Answer is Chhattisgarh. इंडिया का जो पहला कैशलेस बाजार है वो कहाँ पे सबसे पहले कहाँ पे हुआ है? वो है छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़, इंडियाज फर्स्ट कैशलेस बाजार हैज कम अप इन रायपुर, छत्तीसगढ़। और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है छत्तीसगढ़ से।
आपको पता होंगे, चलो मैं बता देता हूँ एक बार। छत्तीसगढ़ से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि मारवा 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 थर्मल पावर प्लांट जो है ये कहाँ पे है? मारवा थर्मल पावर प्लांट है जो है ये भी छत्तीसगढ़ में है, ये भी छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, मारवा थर्मल पावर प्लांट जो है ये भी छत्तीसगढ़ में है। और सेकंड पॉइंट ये है कि सौर सुजल योजना जो है ये भी छत्तीसगढ़ में लॉन्च करी गई थी। ठीक है, तो सौर सुजल योजना भी ये भी छत्तीसगढ़ में लॉन्च हुई थी। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सौर सुजल योजना बारे में मैंने बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये अब इस पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मत है कि सौर सुजल योजना जो है ये किस सेक्टर के लिए लॉन्च हुई थी? तो ये इरिगेशन पंप डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लॉन्च हुई थी। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, सौमित्र चौधरी who passed away recently was a famous personality of which field? सौमित्र चौधरी जो है, जो अभी इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो ये किस फेमस पर्सनालिटी है, मतलब ये किस प्रोफेशन से आती थी? तो ये एक इकोनॉमिस्ट थी। ठीक है, ये क्या थी? एक इकोनॉमिस्ट थी। ठीक है, तो सौमित्र चौधरी कौन थी? एक इकोनॉमिस्ट थी और ये फॉर्मर प्लानिंग कमीशन मेंबर भी थी। सौमित्र चौधरी जो थी ये फॉर्मर प्लानिंग कमीशन मेंबर भी थी। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सौमित्र चौधरी जो है ये अभी जो डेथ हुई इनकी, तो ये किस प्रोफेशन से रिलेटेड थी? ये थी इकोनॉमिस्ट से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which famous personality has become the brand ambassador of Assam tourism? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। which famous personality has which which famous personality has become the brand ambassador of Assam tourism? Priyanka Chopra. Priyanka Chopra is the right answer for this. प्रियंका चोपड़ा को असम टूरिज्म के लिए ब्रांड एम्बेसडर बना दिया और सबसे अच्छी बात है कि वो इसके लिए कुछ भी चार्ज नहीं ले रही है। ठीक है, इसके लिए एक भी पैसा नहीं ले रही है वो। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो वो ये है कि ब्रांड एम्बेसडर ऑफ तस्मानिया कौन है? ब्रांड एम्बेसडर ऑफ तस्मानिया कौन है? रिकी पॉन्टिंग। रिकी पॉन्टिंग जो है ये ब्रांड एम्बेसडर है ऑफ तस्मानिया। ठीक है, सेकंड एक बनता है कि ब्रांड एम्बेसडर ऑफ समाजवादी किसान बीमा योजना कौन है? ब्रांड एम्बेसडर ऑफ समाजवादी किसान योजना, समाजवादी किसान बीमा योजना। So the answer is a Nawazuddin Siddiqui. Okay, Nawazuddin Siddiqui is a brand ambassador of समाजवादी किसान बीमा योजना। अच्छा, एक और भी था इसमें कि ब्रांड एम्बेसडर ऑफ समाजवादी पेंशन बीमा योजना, तो वो उसका राइट आंसर क्या है? विद्या बालन। ठीक है, तो विद्या बालन है किसका आंसर? समाजवादी पेंशन बीमा योजना का। और समाजवादी किसान बीमा योजना का आंसर क्या है? नवाजुद्दीन सिद्दीकी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी आंसर है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ समाजवादी किसान बीमा योजना का। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्रांड एम्बेसडर ऑफ तस्मानिया कौन है? रिकी पॉन्टिंग। और एक और था ब्रांड एम्बेसडर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, तो उसका आंसर क्या है? जॉन इब्राहिम। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि असम टूरिज्म की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है? तो वो है प्रियंका चोपड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, who will be the head of newly constituted high level task force on Indu water treaty? Okay, so the right answer is a नृपेंद्र मिश्रा। नृपेंद्र मिश्रा जो है ये जो हेड बने हैं, who will be the head of newly constituted high level task force on Indu water treaty is a नृपेंद्र मिश्रा। ओके, एक और इसमें चीज है कि नृपेंद्र मिश्रा है कौन? ओके, सो ये है प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ये है हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं नृपेंद्र मिश्रा। इनको क्या बना दिया? इनको हेड बना दिया गया है। ही इज द हेड ऑफ अ न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड हाई लेवल टास्क फोर्स ऑन इंदू वाटर ट्रीटी। ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, और भी कुछ अभी कुछ कमिटीज बनी थी, उनको भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट देख लेते हैं। फर्स्ट है टू रिकैलिब्रेट एटीएम। आंसर इज एस एस मुंद्रा। एस एस मुंद्रा को हेड बनाया गया था इस कमिटी के लिए कि टू रिकैलिब्रेट एटीएम के लिए एक कमिटी बनाई गई थी, तो उसके हेड है एस एस मुंद्रा। ठीक है, सेकंड फॉर स्वदेश दर्शन स्कीम। फॉर स्वदेश
दर्शन स्कीम के लिए किस टीम को बनाया गया, उसके हेड कौन थे? तो उसके हेड कौन थे? उसके हेड थे विनोद जुस्सी। विनोद जुस्सी, ठीक है। फॉर स्वदेश दर्शन स्कीम विनोद जुस्सी की जो है वो टीम बनाई गई थी, ठीक है। थर्ड एक और इम्पोर्टेंट है, मुझे याद आ रहा है, टू डेवलप डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म। मतलब डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म के लिए भी एक कमिटी का हेड को नियुक्त करा गया था। तो डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म, तो द आंसर इज अमिताभ कांत, ठीक है। अमिताभ कांत इज द आंसर, अमिताभ कांत, ओके। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आ सकते हैं। मैं वही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ जो रिलेटेड है क्वेश्चन से। तो टू रिकैलिब्रेट एटीएम द कमिटी इज created and head is SS Mundra. Okay. For Swadesh Darshan scheme, who is the head? Vinod Jussi. Vinod Jussi is the head of for Swadesh Darshan scheme platform. Okay. Next question. Which e-commerce gateway has launched a campaign Each One Teach One to increase the digital inclusion in India? Answer is a Paytm. Okay. Answer is a Paytm. Next question. India's first transgender school, Sahaj International School, to be set up in which to be set up in which is Indian city on December 30, 2016? Okay, so the answer is इंडियाज फर्स्ट ट्रांसजेंडर स्कूल। देखो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि इंडिया का जो फर्स्ट ट्रांसजेंडर स्कूल है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? सहज इंटरनेशनल स्कूल नाम है। और ये कहाँ पे लॉन्च हुआ है? ये लॉन्च हुआ है कोच्चि में, ठीक है। इसको कहाँ पे लॉन्च करा गया है? कोच्चि में। सो इंडियाज फर्स्ट ट्रांसजेंडर स्कूल सहज इंटरनेशनल स्कूल टू बी सेट अप इन विच सिटी ऑन December 30 इज अ कोच्चि, ठीक है। तो आंसर क्या है? कोच्चि है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which Indian state has emerged as the first state to adopt the Mahila Police Volunteer Initiative on December 14, 2016? The answer is a Haryana. Okay, answer क्या है? Haryana. Haryana Indian state has emerged as the first Indian state to adopt the Mahila Police Volunteer Initiative on December 14. There is some another point which is related to Haryana, and it come in a December news. Haryana. Okay, the first is to link public distribution scheme to आधार कार्ड। ओके, इन्होंने क्या किया? जो पीडीएस स्कीम थी, मतलब जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम थी, उसको लिंक करा है किससे? आधार कार्ड से। उसको लिंक करा है आधार कार्ड से, ठीक है। और सेकंड क्या करा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है फार्म टूरिज्म स्कीम। फार्म टूरिज्म स्कीम का भी लॉन्च करी है। वो किसने लॉन्च करी? हरियाणा ने, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि हरियाणा ने पीडीएस स्कीम जो लिंक करी आधार कार्ड से, और सेकेंड है फार्म टूरिज्म स्कीम, ये भी किससे रिलेटेड है? ये भी हरियाणा से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which public sector unit has inked MOU with NALCO on December 16 to set up a 2400 megawatt means 300 megawatt के 8 प्लांट है उसमें, पावर प्लांट इन डेन कैनाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। सो द आंसर इज अ एनटीपीसी। ओके, एनटीपीसी जो है उसने नैल्को के साथ क्या करा है? लिंक करा है। और कहाँ पे? उड़ीसा में। उड़ीसा में 2400 मेगावाट है जो वो सेटअप करा है, ठीक है। नैल्को का फुल फॉर्म क्या होता है? नैल्को का फुल फॉर्म है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड इसका नाम है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी है? इसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट है 36,000 करोड़। इसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट है 36,000 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has been appointed by Audi as the new head of India operation? Okay, answer is the Rahil Ansari. Rahil Ansari has been appointed by Audi as the new head of Indian operation. Okay, next question. Which among the following institution has been selected for the Digital India Silver Award under Most Innovative Citizen Engagement category? Answer is a कोयम्बटूर सिटी। कोयम्बटूर सिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ये है कहाँ पे? ये है तमिलनाडु में, ठीक है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि विच अमंग द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन हैज बीन सिलेक्टेड? आंसर इज अ कोयम्बटूर सिटी। कोयम्बटूर सिटी हैज बीन सिलेक्टेड फॉर डिजिटल इंडिया सिल्वर अवार्ड। डिजिटल इंडिया सिल्वर अवार्ड के लिए, तो डिजिटल इंडिया सिल्वर अवार्ड क्यों दिया जाता है? तो ये बहुत ही मोस्ट इनोवेटिव सिटीजन एंगेजमेंट कैटेगरी में आया है कोयम्बटूर सिटी।
इसलिए इसको अवार्ड दिया गया है। अच्छा, क्या किया था इन्होंने किया था फॉर इंस्टॉलिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग फ्री वाईफाई स्कीम इन इट्स वेरियस ऑफिसेज। मतलब अपने जो ऑफिसेज हैं बहुत सारे, उसमें क्या क्या इंस्टॉल कराए हैं, फ्री वाईफाई स्कीम को इंस्टॉल कराया है और उसको इम्प्लीमेंट करा है। इसलिए अभी रिसेंटली कुछ तमिलनाडु में हुआ है, वो क्या हुआ कि सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट गार्डन, ठीक है, सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट गार्डन, ओके, सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट गार्डन, ये लॉन्च हुआ, ये इनॉग्रेट हुआ। इसको इनॉग्रेट किसने करा है? इसको इनॉग्रेट करा था मॉरिशस के प्रेसिडेंट ने, ठीक है। इसको इनॉग्रेट करा था मॉरिशस के प्रेसिडेंट ने। तो अगर क्वेश्चन आता है कि सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट गार्डन है कहाँ पे, तो ये है तमिलनाडु में, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ऑस्टरी लेक कहाँ पे है, ठीक है। ऑस्टरी लेक है कहाँ पे? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर क्या है? पुदुचेरी, ठीक है। तो यूनियन कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव द ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट प्रपोजल ऑफ पुदुचेरी गवर्नमेंट to treat water from Australia Lake to meet water requirement in the area. What is the total cost of the project? Total cost of the project is a 40 crore. Okay, so 40 crore is the total cost of the project. Okay, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Union government has planned to launch a Cash Mukt Bharat Abhiyan helpline number, which is a nationwide toll-free number to educate people and provide support related to cashless mode of transaction. The answer is a 14,444 14444। ओके, सो ये है हेल्पलाइन नंबर जो यूनियन गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है। यूनियन गवर्नमेंट हैज प्लान टू लॉन्च अ कैश मुक्त भारत अभियान हेल्पलाइन नंबर which is a nationwide toll free number, okay। इसी के साथ में कुछ और हेल्पलाइन नंबर्स लॉन्च हुए, उसका बताए तो जैसे 1947। तो 1947 जो है ये किसने लॉन्च करा? इसको लॉन्च करा बाय UIADI, ठीक है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। किस लिए करा? टू गेट क्विक इंफॉर्मेशन अबाउट आधार कार्ड, टू गेट क्विक इंफॉर्मेशन अबाउट आधार कार्ड, ठीक है। तो ये हुआ था किसके लिए? 1947 का, बाय यूआईएडीआई टू गेट क्विक इंफॉर्मेशन अबाउट आधार कार्ड, ओके, ठीक है। इसके बाद एक और हुआ, वो हुआ 1924। 1924 किस लिए हुआ था? बाय पोस्टल डिपार्टमेंट टू रजिस्टर पोस्टल कंप्लेंट्स, ठीक है, पोस्टल कंप्लेंट्स के लिए इसको लॉन्च करा गया, ठीक है, 1924 को। एक और हुआ 14401, 14401, ये किस लिए हुआ? ये था ऊर्जा मित्र हेल्पलाइन, ये था ऊर्जा मित्र हेल्पलाइन टू कंप्लेंट पावर आउटरेजेस के लिए कंप्लेन करनी है तो आप कर सकते हैं 14401 पे कॉल करके, ठीक है। तो ऊर्जा मित्र हेल्पलाइन 14401, ठीक है। अनदर नंबर इज द 1969 जो लॉन्च हुआ, उसका वो स्वच्छता हेल्पलाइन के लिए लॉन्च हुआ, ठीक है। तो स्वच्छता हेल्पलाइन के लिए कौन सा लॉन्च हुआ? वो हुआ 1969, ठीक है, स्वच्छता हेल्पलाइन। ओके, नेक्स्ट है 1955, ये रिसेंटली अभी लॉन्च हुआ है 1955 1955 टू इशू ऑफ कॉल ड्रॉप्स, ओके, टू इशू ऑफ कॉल ड्रॉप्स, ये हुआ है 1955। तो ये कुछ हेल्पलाइन नंबर्स हैं जो मेरे ख्याल से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसको राइट डाउन कर लेना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। The sports and culture based Judima festival is celebrated in which Indian state? ओके, तो बहुत सारे फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज हुए हैं, तो फेस्टिवल की एक अलग से लिस्ट बना लेना। वैसे तो मैंने देता रहता हूँ, ठीक है, लेकिन आप अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार रहना क्योंकि पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आंसर इज असम, ठीक है। द स्पोर्ट्स एंड कल्चर बेस्ड जुडिमा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? द आंसर इज असम, ओके। इसको क्या बोलते हैं? स्पोर्ट्स और कल्चरल बेस भी इंपॉर्टेंट है इस सेक्शन में कि जुडिमा फेस्टिवल किस कैटेगरी में आता है, तो स्पोर्ट्स एंड कल्चर बेस, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Which country recently inaugurated the world's largest non-permanent indoor ice rink? Okay, so the answer is a Paris, France. ठीक है, पेरिस जो कंट्री है उसने रिसेंटली इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नॉन परमानेंट इंडोर आइस रिंक, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं।
विच बैंक हैज लॉन्च अ मोबाइल वॉलेट ऐप मोबी कैश। अभी हमने सबसे पहले हमने पढ़े थे जितने भी एप्लीकेशन लॉन्च हुए थे, यस बैंक ने लॉन्च किया था, कैनरा बैंक ने लॉन्च किया था, एक बार उसको एक बार फिर से देख लेना। ठीक है, तो मोबी कैश किसने लॉन्च किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। किसके साथ करा है कोलैबोरेट इसके लिए? बीएसएनएल के साथ करा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किसके साथ इसके लिए कोलैबोरेट करा है? बीएसएनएल के साथ करा है। ठीक है, तो मोबी कैश लॉन्च करा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज लॉन्च मोबाइल वॉलेट मोबी कैश विच कैन बी यूज्ड इन बोथ स्मार्टफोन एज वेल एज अ फीचर फोन है। और किसके साथ करा है? बीएसएनएल के साथ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। देखो यहाँ से कुछ अपॉइंटमेंट्स है जो शायद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो who has been appointed as the new chief of army staff is answer is a Bipin Rawat. Bipin Rawat as the new chief of army staff. ठीक है, another question, name the newly appointed chief of Indian Air Force. So answer is a BS Dhanoa. BS Dhanoa. ठीक है, तो name the newly appointed chief of Indian Air Force is a BS Dhanoa. ठीक है, next question, who has been appointed as the new chief of intelligence bureau. Who has been appointed the new Rajiv Jain. ठीक है, Rajiv Jain has been appointed as the new chief of intelligence bureau. So ये क्विकली बहुत ही अभी रिसेंटली जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है। फिर से बता देता हूँ, बिपिन रावत को अपॉइंट करा गया है न्यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, बीएस धनोआ को अपॉइंट करा गया है चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स, एंड राजीव जैन फॉर चीफ ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो। ओके, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आई थिंक आपको एक बार देख लेना चाहिए इसको। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। Colombian president has been honored with Lampara Peace Prize or Catholic Nobel for his efforts to reach the FARC deal on December 18 in Italy. So what is the name of Colombian president? बहुत important question है। The name is a Juan Manuel Santos. Okay, Juan Manuel Santos is the name of a Colombian president who has been honored with Lampara Peace Prize or Catholic Nobel for his efforts to reach the FARC deal. Okay. So next question. Telecom Ministry is soon to launch a web portal that will let users check radiation compliance status of towers across the country and get a specific one tested on request. What is the name of the portal? Okay, the name is of the portal is a तरंग संचार। ठीक है, तरंग संचार जो है ये है तरंग डिपार्टमेंट। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि इसको किसने लॉन्च करा है, तो इसको लॉन्च किया टेलीकॉम मिनिस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम। तो देखो एग्जाम में ये भी लिख के आ सकता है कि डीओटी, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अगर पूछ ले कि तरंग संचार को किसने लॉन्च करा है और दिया हो एक ऑप्शन में डीओटी, ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम इसका मतलब होता है या फिर टेलीकॉम मिनिस्ट्री। ठीक है, टेलीकॉम मिनिस्ट्री बोलो या फिर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम बोलो। ठीक है, तो इस सेट टू लॉन्च अ वेबसाइट पोर्टल जिसका नाम क्या है? तरंग संचार। ठीक है, दिस दैट विल हेल्प users get check the radiation level of mobile towers and transmitters across the country. Okay, in order to get radiation of particular tower tested, the applicant will have to pay a fees of 5,000 rupees. ठीक है, मतलब अगर पर्टिकुलर चेक करने के लिए करना है तो 5,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे उसके लिए। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने कौन सा लॉन्च करा है? तरंग संचार। ठीक है, वेबसाइट पोर्टल लॉन्च किया, इसका नाम क्या है? तरंग संचार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द यूक्रेन लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक। Name the Ukraine largest private bank which was recently nationalized by the government after being declared insolvent by the National Bank of Ukraine. Answer is a private bank. ठीक है, private bank is the right answer for this. Name the Ukraine largest private bank. ये यूक्रेन की largest private bank थी। ठीक है, इसका नाम भी था प्राइवेट बैंक। ठीक है, सो इसको क्या कर दिया? इसको नेशनलाइज कर दिया यूक्रेन ने, अपनी यूक्रेन की गवर्नमेंट ने इसको नेशनलाइज कर दिया है। ठीक है, चलो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि द गवर्नमेंट ने अभी रिवाइज करा है कुछ, उसका नाम है नॉर्थ ईस्ट इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी। ठीक है, इसके कुछ फीचर्स हैं, वो मैंने इसका क्वेश्चन नहीं बनाया, मैंने इसका सीधे आपको बता देता हूँ उसके बारे में।
तो इसमें कुछ पॉलिसीज हैं एज पर द न्यू पॉलिसी। अब जो रिवाइज हुआ है, तो रिवाइज क्या हुआ है, नॉर्थ ईस्ट इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी, इसको रिवाइज करा गया है। 2007 में बनी थी, इसको अब रिवाइज करा है। ठीक है, तो रिवाइज करा है तो कुछ रूल्स चेंज हुए। जैसे गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड दैट द सब्सिडीज पेबल टू ऑल इंडस्ट्रियल यूनिट्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मैकेनिज्म बाय चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि जितनी भी सब्सिडीज पेबल होती हैं उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू करेंगे। ठीक है, सेकंड ये है कि ये 1 दिसंबर 2000 इंडस्ट्रियल यूनिट्स कमेंस प्रोडक्शन ऑन और आफ्टर दिसंबर 1 2014 एंड ऑन or before 31st March 2017 will be eligible for incentives as per the revised norms of subsidy. Okay. And third feature of this, the subsidy for the existing and new industrial units going for substantial expansion will be limited for 3 crore per industrial unit. तो ये कुछ फीचर्स थे जो रिवाइज हुए थे। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं था क्योंकि पेपर में, क्योंकि मेंस का एग्जाम आपका इस समय सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, तो इसलिए मैंने सिर्फ इसके फीचर्स रखे हैं कि आपको फीचर्स इसके पता होने चाहिए जो रिवाइज हुए हैं, और इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एनईआईपी का फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ ईस्ट इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। KN Jagannath Verma, who died on December, was associated to which field? Okay, it is related. He is related to actor. Okay, he was related to actor KN Jagannath Verma, who died on December 30 at the age of 77. He was a Malayalam film actor. Okay, he was a Malayalam film actor. Okay, next question. The union government is soon to launch a toll-free number to address the issue of call drop। मैंने अभी आपको बताया था कि कॉल ड्रॉप के इशू के लिए कौन सा टोल फ्री नंबर लॉन्च किया है। द आंसर इज अ 1955। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कॉल ड्रॉप के लिए कौन सा नंबर लॉन्च किया है, तो वो नंबर है 1955। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The union government has announced project worth 207 crore for protection and development of world's biggest river Iceland, Mazuli. The Iceland is built along which river? The Brahmaputra river. Answer is a Brahmaputra river. तो इसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी? इसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट है 207 करोड़। सो द यूनियन गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड प्रोजेक्ट वर्थ 207 crore for protection and development of world's biggest river Iceland, Mazuli. Okay, so next question देखते हैं। RBI had recently imposed penalty on how many banks? So answer is a 5 banks. Okay, RBI ने 5 बैंक्स पे अभी पेनल्टी लगाई है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है कि आरबीआई ने 5 बैंक्स पे पेनल्टी लगाई है। ठीक है, अंडर द, मतलब कुछ वॉयलेशन करा है उन्होंने अंडर द एक्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। देखो एग्जाम में इसका फुल फॉर्म आ सकता है, अभी लिख लो, इसका फुल फॉर्म आ सकता है क्योंकि लास्ट ईयर पूछे गए फॉर्म्स, इसके फुल फॉर्म इसका आया है, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको एक बार देख लो। ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इसका फुल फॉर्म है एफईएमए का। ठीक है, एक्ट कौन सा है? 1999। ओके, 5 बैंक्स पे पेनल्टी इम्पोज करी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Vanidhasan, who had recently been named for the 2016 Sahitya Academy Award, is famous for her writings in which language? It is famous for Tamil. तमिल लैंग्वेज के तमिल ऑथर है ये। ठीक है, इनके साथ कुछ और लोगों को मिला, उनका नाम था जैरी पिंटो। जैरी पिंटो, ये मुंबई के राइटर है। ठीक है, जैरी पिंटो भी ऑथर है, इनको भी प्राइज मिला है। ठीक है, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है इनको, इज फेमस फॉर हर राइटिंग्स इन विच लैंग्वेज? एक जैरी पिंटो को मिला है, एक और नाम है इसमें, वो नाम है नासिरा नासिरा शर्मा। नासिरा शर्मा, ओके, ये हिंदी राइटर है, ये भी नासिरा शर्मा भी हिंदी राइटर है। तो ये नेम फॉर द प्रेस्टिजियस साहित्य अकेडमी अवार्ड 2016। तो ये जो न्यूज थी पूरा कंपाइलेशन था, बेसिकली हिंदू न्यूज़पेपर का जो करंट अफेयर्स है उसको टारगेट करा गया था इसमें। सारी यूनियन मिनिस्ट्री मैंने कवर करी है, सारे जो भी डेथ हुई थी वो कवर करी है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपने इसको पढ़ लिया है तो शायद अब आपको सिर्फ एक काम करना, आपको डेली की न्यूज़ेस नहीं देखनी उसमें, मतलब 14 से 24 दिसंबर तक डेली न्यूज मत देखो आप
आप बस एमसीक्यूज पे फोकस कर लो अब, ठीक है, क्योंकि मैंने काफी जो भी इम्पोर्टेंट था वो तो सब मैंने कवर कर दिया है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही है, और ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, कि इससे ये होगा कि आपको फ्री अपडेट्स मिलेंगे, कि जो भी न्यू वीडियोस डालता हूँ उसके अपडेट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। और आप वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है, और मेरी टीचिंग को रेट भी दीजिएगा, ठीक है, आपको मेरी टीचिंग कैसी लगती है, आप आउट ऑफ 10 मार्क्स दीजिएगा, ठीक है। एंड थर्ड, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब से अपडेट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। ओके।